Welcome back once again. Myself Pransu Kumar Pathak. In this part 2 we will discuss some other question. So let's try to discuss about other question. So first question is, the fluorescent dye is injected into the lumen of endoplasmic reticulum. In which of the following compartment can fluorescent signal will observed? So किस में किया जा रहा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन में. सो ER से कहाँ जाएगा? गोल्गी में, और गोल्गी से जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप में. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. Endomembrane system. So guys, it will exact answer is ER, Golgi and nuclear envelope. Okay, so which one of the following statement about the sodium potassium pump ATPase is correct? So it is responsible for generating and resting membrane potential, the transport of sodium and potassium and down their respective gradient. It is possible for generating an action potential. Is it indirectly regulate the volume of the cell? So which of the following statement about sodium potassium ATPase is correct? That is the it indirectly regulate the volume of the cell. That is the right option. Protein glycosylation can take place only on the which of the following amino acids? So अगर आप पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे PTM, then you will try to understand that asparagine, serine and threonine is responsible for glycosylation. This is modifications of histone, so that will help you guys. So try to note these things. Okay, so next question is, which one of the following organelle disappear during cell division and regenerated in the daughter cell? So that is the Golgi body. Golgi body is the right answer. Okay, next question. In E. coli, mismatch during the replication is corrected by mismatch repair. Okay, mismatch repair is again repair pathway. It means, dear guys, you have to understand the repair mechanism and DNA repair pathway. For this, protein differentiate between the parent and daughter strand by, so identify the methylation of the parent strand. So parent strand is methylated several times. I have discussed in the question during, और YouTube पे मेरे lectures available हैं. You can understand the difference between parental strand and daughter strand. Parental strand must be methylated, my dear friend. Okay, so come to the next, promoter transcription. So promoter is for signed Dalgarno sequence, and transcription relate to the translation. So right option is 1. Okay, next question is, hair cell in the inner ear act as receptor of which one of the following cues? So that is the mechanical strength. That is again very important question for you guys. Okay, now come to the next question, which one of the following reaction does not occur in fatty acid synthesis? That is the phosphorylation. सारा चीज़ आपको मिलेगा लिपिड के सिंथेसिस में, बट फैट सिंथेसिस में, बट कभी भी आपको फॉस्फोरिलेशन नहीं दिखाएगा, यानी काइनेज एक्शन नहीं दिखाएगा फैटी एसिड सिंथेसिस में. द अमीनो एसिड दैट एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड बेस in an enzyme catalysis reaction, that is called as histidine, which basically responsible for secretion of histamine, and which is really very important in your anaphylatoxis hypersensitivity type 1. So try to understand hypersensitivity, that is of 4 type, and type 1 is due to histamine secretion. और इसमें जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है वो IgE होता है ना. So you have to try to understand. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ए है आपके पास, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है डियर फ्रेंड. तो आई जस्ट वांट टू इरेज ऑल दिस थिंग्स. इन DNA सीक्वेंस अंडरगो इन्वर्जन हो रहा है, दिमाग में याद रखना है, दिस सीक्वेंस इज गोइंग अंडर इन्वर्जन. सो द राइट ऑप्शन आपको इन्वर्जन के बाद खोजना है. तो आप ध्यान से देखो, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 वाला. अब कैसे होगा आंसर 4? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GGTATC. तो आप इस वाले स्टैंड में देखो GGT, देख रहे हो, उलट के देखिए. सो इफ यू गो इन दिस स्टैंड, देन यू विल फाइंड द सेम सीक्वेंस इन complementarity. Okay, so GG
TATC, देख रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और जब इसको आप मैच करोगे तो आपको मैच होगा, तो राइट ऑप्शन इज 4। ओके, सो आप जब कॉम्प्लीमेंटरिटी चेक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। सो बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी रिलेशनशिप यू कैन अंडरस्टैंड द इन्वर्जन पार्ट ऑफ द DNA सीक्वेंस। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन a DNA with a sequence this need to a PCR the reverse primer of the following sequence. You know, reverse primer is always made from the 3' region and in that will the complementary sequence. So आप इधर से पढ़ो तो इसका G होगा, C होगा, A होगा, तो देखिए आपको A सीक्वेंस जो फर्स्ट है ये आपका प्राइमर का सीक्वेंस होगा, यानी रिवर्स कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, रिवर्स complement from the 3' end of the DNA sequence will give rise to your reverse primer. Okay, exact answer is 1. Now the gamma phosphate level ATP molecule is used to DNA level fragment. तो आपको बताना है कि what will be the result, no level D will be found, क्योंकि जब भी आप DNA लेबलिंग करते हैं तो अल्फा रीजन को, अल्फा जैसे अल्फा बीटा गामा 3 होता है ना, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है लास्ट वाला गामा। जब गामा को आप ATP लेवल करोगे तो ये तो हर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना, तो आपको रेडियो एक्टिविटी मिलेगा ही नहीं, तो नो लेवल DNA विल बी फाउंड। ओके, सो नेक्स्ट, DNA पॉलीमरेज डिफर फ्रॉम क्लिनोफ्रैगमेंट। दिस क्वेश्चन आई डिड इन रॉन्ग इन 2018 बिकॉज इन 2018 आई गॉट DBT JRF एंड दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। मेरा क्या हो गया था, ये क्वेश्चन गलत हो गया था माय डियर फ्रेंड। सो द एग्जैक्ट आंसर इज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज लॉस्ट इन क्लिनोफ्रैगमेंट, वो हटा दिया जाता है तब क्लिनोफ्रैगमेंट कराता है, और मुझे लगा था कि नहीं 3 to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हटा दिया जाता है। सो मैंने गलत कर दिया था, आप कभी ऐसा गलत नहीं करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक क्वेश्चन हमको ध्यान से देखना है और इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नो, जब भी आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पेशेंटली देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट। ओके, सो आप यहाँ पे एक ही चीज़ देखना है कि हिंड थर्ड से 14 kb का फ्रैगमेंट और 20 kb का फ्रैगमेंट कहाँ मिलता है। नो, you have to very conscious about whenever you are going to solve this type of question, you have to be patiently there and you have to focus on the question, you know, to try to understand where the fragment is 14 kb and 20 kb when this is digested by hind third. So try to find it out. Okay, so hind third is there, so try to notice this fragment is 10 plus 12 22 and this is 12. सो हिंड थर्ड के बाद डाइजेशन के बाद कोई भी 22 और 12 फ्रैगमेंट नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सेकेंड, हिंड थर्ड यहाँ है तो फ्रैगमेंट इज 10 एंड सेकेंड फ्रैगमेंट इज अगेन वेरी ऑड, सो दिस ऑप्शन इज अगेन वेरी रॉन्ग। नाउ दिस ऑप्शन हिंड थर्ड इज देयर, दिस इज 8 kb, दिस इज अगेन गिव राइज टू ए वेरी लॉन्ग फ्रैगमेंट, सो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। ट्राई टू सी दिस, हिंड थर्ड इज देयर, so if you digest with hind third then you will got 10 plus 4 that is 14 and 8 plus 12 that is 20. So when you are digesting a DNA fragment with hind third you will find exact 14 and 20 kb DNA. So option 4 is the correct option in this question. So dear friend, 4 option is right. समझ में आया? तो कभी भी आपको रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का क्वेश्चन आए, पेन और पेपर और पेंसिल उठाइए और try to write down these things. It will really help you guys. Try to understand it. It's really very important for you guys. Okay, so इस क्वेश्चन को देखते हैं, हेमोग्लोबिन के बारे में है। तो हेमोग्लोबिन is made up of 2 copies of alpha and beta globulin subunit. This technique can be used to establish stoichiometry of alpha and beta subunit. हेमोग्लोबिन में अल्फा 2 और बीटा 2 होता है, ठीक है, ये टेट्रामेरिक प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसके पास होता है, ठीक है। तो जब आप इसको देखना चाहेंगे तो आपको SDS जेल चलाना पड़ेगा। SDS जेल में क्या होगा, दिस ऑल सब यूनिट्स विल सेपरेटेड आउट एंड द एग्जैक्ट आंसर इज SDS पेज एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन जीन इज क्लोन्ड इन इकोलाई एक्सप्रेशन वेक्टर, हाउएवर extremely poor protein expression is detected on SDS page despite of high level of specific RNA. The most likely explanation.
एक क्वेश्चन कहता है कि एक जीन को क्या किया गया, इकोलाई के एक्सप्रेशन वेक्टर में क्लोन किया गया और उसका जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है बहुत ही कम है, जबकि उसका जब mRNA चेक किया गया तो mRNA बहुत अच्छा से बहुत ही प्रोमिनेंट था। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि उसके पास क्या है, लैक ऑफ आइसो एक्सेप्टिंग tRNA। तो इसीलिए इस तरह के सेल को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोडोन ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रेन लेते हैं, जैसे रोजेटा लेते हैं, और भी कई स्ट्रेन्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, इस प्रोटीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भी अदर रीजन हो सकते हैं, उसको भी देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, ठीक है, जब प्रोटीन इंक्लूजन बॉडीज बनाने लगती है तो प्रोटीन के अंदर, सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। जब आप हाई टेम्परेचर पे अपने प्रोटीन को एक्सप्रेस करा रहे होते हैं, है ना, कोई व्यक्ति 37 पे करा रहा है तो इंक्लूजन बॉडी बनने लग रहा है और इससे भी पुअर एक्सप्रेशन हो सकता है। वो क्या करेगा, जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द टेम्परेचर, और अब ये टेम्परेचर कर दिया 18 और 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ऑन दिस टेम्परेचर 18 और 16 डिग्री टेम्परेचर, योर प्रोटीन इज रियली वेरी गुड एंड योर एक्सप्रेशन इज वेरी राइट। सो रिड्यूसिंग टेम्परेचर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन एक्सप्रेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, सो इंक्लूजन बॉडीज अगर बन रही है तो वो कम टेम्परेचर पे इंक्लूजन बॉडीज नहीं बनेगा और आपका प्रोटीन अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, लैक ऑफ स्पेसिफिक आइसो एक्सेप्टिंग tRNA, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोडोन ऑप्टिमाइज स्ट्रेन ऑफ द इकोलाई, दैट इज रोजेटा एंड अदर्स, है ना। सो राइट ऑप्शन इज 4, है ना। और इंक्लूजन बॉडीज की भी स्टोरी बताई, जब हाई टेम्परेचर पे आप किसी प्रोटीन को एक्सप्रेस करा रहे होंगे तो आप इंक्लूजन बॉडी बनेगी, जिससे सेल टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और आपका जो पर्टिकुलर प्रोटीन है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट रिड्यूस द टेम्परेचर, दैट इज 18 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, देन योर प्रोटीन इज एबल टू सिंथेसाइज बाय द सेल्स। सो राइट ऑप्शन इज 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमीनोप्टेरिन का काम क्या है। जब हैट मीडियम को आप देखेंगे तो अमीनोप्टेरिन हैट मीडियम में क्या करता है, एक्चुअली जो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है उसको इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sorry, so this question I will discuss first. So among the mirodiploids in lack of prone study, जीन एक्सप्रेशन स्टडीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको इस पे कमांड होना ही चाहिए। विच वन इज नॉट इंड्यूसिबल बाय द लैक्टोज। नॉट इंड्यूसिबल बाय लैक्टोज कहने का मतलब क्या है कि आपको ध्यान से यह याद रखना कि जब भी अगर ऑपरेटर नॉन फंक्शनल हो गया, ऑपरेटर जब फंक्शनल नहीं हुआ तो ये सारा चीज़ तो एक दूसरे से लेकर के कंप्लीट कर देगा, ये सब आपस में लेकर के कर देगा। लेकिन एज यू कैन सी हियर दैट इन बोथ द केस द ऑपरेटर इज म्यूटेंट। इफ ऑपरेटर इज नॉट फंक्शनल, हाउ लैक ऑपरेशन इज इंड्यूस्ड बाय लैक्टोज। तो ऑप्शन 3 इज द राइट, दैट इन दिस 3 ऑप्शन इट इज नॉट एबल टू इंड्यूस बाय द लैक्टोज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA fragment digested by hind third and echo-organ was ligated within a vector with hind third and echo-organ site present in the polylinker vector. Using upon screening of the transformants by digestion with hind third and echo-organ, it was found that the transformants contain only one self-ligated vector and there was no recombinant clone. So what is the possible reason? अब आप इसको समझने का कोशिश करो। जब भी हम कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डालते हैं तो ये आपका वेक्टर हुआ, ठीक है, और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो आप याद रखिएगा, जिससे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट रहे हैं, यहाँ पे BAM हिंड थर्ड यूज कर रहा है और दूसरा इको-ऑर्गन यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसी सेम इंजाइम से यहाँ पे हिंड थर्ड होगा और यहाँ पे इको-ऑर्गन होगा। ठीक है, तो अगर आप सेम से यूज करेंगे तभी आपका क्या होगा, पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से जाकर के यहाँ पे सेट करेगा और लाइगेट होगा। ठीक है, यहाँ पे जाकर के लाइगेट होगा, तब ये प्रॉपर होगा। यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट शुड बी डाइजेस्टेड बाय द सेम सेट ऑफ एंजाइम दैट इज डाइजेस्टेड बाय द वेक्टर। जिससे आप वेक्टर को डाइजेस्ट कर रहे हो उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट में, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसी से आपको डाइजेस्ट करना है।
तो इस केस में क्या ऑप्शन हो सकता है? ये सारे ऑप्शन बकवास हैं, 2, 3 एंड 4, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं देना है। कम टू द फर्स्ट वन, ओनली वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट द वेक्टर। अब एक डाइजेस्ट कर रहा है, दूसरा एंजाइम वेक्टर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द सो मेनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, वेक्टर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब वेक्टर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट पार्टिकुलरली नॉट गोइंग इनटू द वेक्टर, सो ट्रांसफॉर्मेंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। तो दिस इज द राइट आंसर, यू नो, कि जब ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं मिलने का मेन रीजन क्या है कि दैट वेक्टर इज डाइजेस्टेड बाय द सिंगल सेट ऑफ एंजाइम, नॉट बाय द बोथ। अगर बोथ से होता, डबल डाइजेशन टेक्निक इसको कहते हैं। डबल डाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट उसी एंजाइम से कट किया जाता है जिस जो कि वेक्टर्स को भी सेम एंजाइम से कट किया जाता है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे जाकर के बैठता है और एक पर्टिकुलर कैसेट तैयार होता है, आपको रिकॉम्बिनेंट क्लोन तैयार होता है, ठीक है। क्लोनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, in cloning experiment alkaline phosphate is generally used for diphosphate plasmid vector rather than insert DNA fragment because the इसका राइट आंसर है वेक्टर कैन सेल्फ लाइगेट एंड फॉर्म कॉलोनीज अपॉन इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट। कभी कभी क्या होता है वेक्टर खुद से खुद लाइगेट करके आपको देगा, तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव क्लोन। जब कॉलोनी पीसीआर करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें वेक्टर ही लाइगेट हो गया है और कोई दूसरा चीज़ नहीं है ना। अब नेक्स्ट है इन ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर XHO1 साइट इन LU2 marker gene and sac site in this marker gene. A student clone a gene using this site. However, should a student select recombinant clone? Recombinant clone जब उसको करना होगा तो वो इस चीज़ पे करेगा तो उसे मिल जाएगा, ठीक है। और इसको पढ़ने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन व्हेन इट कम टू द टाइम, बट आपको यही याद रखना है फ्रेंड्स कि हिस्टिडीन और ल्यूसीन माइनस मीडिया पे जैसे ही आप प्लेट पे ग्रो करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ग्रो तभी करेगा जब वो रिकॉम्बिनेंट होगा, फिर रेप्लिका प्लेटिंग आप करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, है ना। ल्यूसीन पहले आपका, देखिए यहाँ पे हिस्टिडीन पहले आप देंगे मीडियम में, फिर हिस्टिडीन गायब कर देंगे, तो इससे आपको क्या होगा कि परफेक्ट क्लोन जो आपका होगा ट्रांसफॉर्मेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट डिस्कस दिस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड चेंज इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम मोस्ट लाइकली टू चेंज द एक्टिविटी। अब देखिए लाइसिन है और जिनिन है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, ये बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं करेंगे। दिस इज ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, अगेन दिस इज हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज द होल सेट ऑफ द सेट। अब यहाँ पे देखिए ग्लूटामिक एसिड है और स्पार्टिक एसिड है, अगेन दिस आर एसिडिक अमीनो एसिड, यू नो, सो दिस ऑल आर नॉट गोइंग टू मेक ए ड्रास्टिक चेंज, है ना। और ड्रास्टिक चेंज ये हो जाएगा अगर लाइसिन क्या है पॉजिटिवली चार्ज है ना, और प्रोलीन बल्कि और हिंजी रेंज में पाने वाला अमीनो एसिड है, अगर प्रोलीन से चेंज हो गया तो बहुत बड़ा चेंज आपको मिल सकता है देखने को। तो दिस इज द राइट ऑप्शन इज 4, ओके। सो डियर फ्रेंड, दैट्स आई हैव डिस्कस्ड इन पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर, कीप स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।